college right now the admission process is open. वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। सो आप लोग सभी मेरा जो पुराना वीडियो है उसको पूछ रहे थे सलेशन कॉलेज के एडमिशन के बारे में। तो आज के वीडियो में मैं डालने वाली हूँ कि सलेशन कॉलेज का एडमिशन क्या हो रहा है। उसके साथ साथ मैं आप लोग को कॉलेज टूर भी कराने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम लोग स्टार्ट किए कॉलेज का एंट्रेंस से। ये देख रहे इतना बड़ा लोगो सलेशन कॉलेज सिलीगुड़ी कैंपस लिखा है और ये पूरा पार्किंग लॉट है। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूरा एंट्रेंस से। तो यहाँ पर एडमिशन को पूरा डिटेल्स दिया गया है, अच्छे तरीके से आप लोग देख लेना। तो अंदर चले गए। अंदर चलने के बाद ही मैं देख रही हूँ यहाँ पर इतना बड़ा पेड़ लगाया हुआ है, पूरा कैंपस ही ग्रीन है, इतना अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये है आपका प्लेग्राउंड, इतना बड़ा प्लेग्राउंड कॉलेज का है। यहाँ पर ज़्यादातर इवेंट्स वगैरह होता है, यहाँ पर जाते हैं साइंस। और यहाँ है ये हॉल, क्लियन हॉल। यहाँ पर है कैंटीन अलग, ऑलमोस्ट 5 कैंटीन्स है कॉलेज का। यहाँ पर आप लोग बैठ कर बातचीत कर सकते हो फ्री पीरियड में। और ये है सावी ब्लॉक जिसको बोलते हैं कॉमर्स डिनरी। और यहाँ पर पूरा कॉमर्स का क्लासेस होता है, अंदर का कॉरिडोर का फोटो। कॉलेज एडमिशन टू सलेशन कॉलेज वी हैव अभिजीत सर who will be giving us information about the admission process and in details what are the things that has to be done by the applicants. So now I request Abhijit sir to say something. Right now the admission process is open. We have already completed 5th phase of our admission, which is 5 phases of admission. Admission is still open for the students. So if a student wants to apply in Salesian College, the process is first he or she has to go to the Salesian website and apply over there with the relevant documents which has been clearly put out in the college website. Once the application has been processed and put, we will personally call the candidates and also send an email telling him or her when they have to come to our college for the selection process. Once the selection process is over, which consists of an English proficiency test and interview with the management, if the student is selected, then they can take the admission on that very day. And as far as the admission process is concerned, right now we are still open because the CUET results are still not out. The CUET results will be out by 30th June. So our admission process is still on. If anybody is willing to come and apply to our college, they are most welcome. Are there any new courses that the college has started this year? Yeah, so regarding the new courses, we have the MCOM, which we have started we are starting from this year. Apart from that, we also have launched the BA History and Tourism, which is a course which we have also started. And we are offering double major. Since we are an autonomous college, we are the first college in this North Bengal region which is offering double major to the students in various subjects. Can you just give me in short what is double major or dual major, sir? Yeah, so basically the idea of a double major is that students would be, earlier students used to major in one subject. So let's say I want to study political science and along with that I could choose some minor subjects. But under the new education policy, we have an option where the student can actually study 2 majors together. So let's say I want to study both history and pol science as majors. And then finally, after the 3rd semester, I have an option of deciding whether I want to leave one of the majors, then it becomes a minor subject, and continue with one of the majors. So suppose I want to continue with pol science and leave history. So history becomes my minor and pol science becomes my major. So in that case, when I get a degree, my degree would be called a major in pol science and minor in history. Now, if the student wants to continue with both the majors, then in that case, his or her certificate would be saying double major in political science and history. That's what dual major basically means. Then we know that the college is autonomous. What are the benefits of being an autonomous? The most important benefit of being autonomous is that we have our own board of studies and we actually make our own syllabus, and this has given us a kind of independence because we don't have to strictly follow a particular university bound syllabus. So what happens is that our syllabus is more modern, it's more independent,
and student gets a lot of facilities therefore. So the kind of syllabus that we usually, earlier students used to move out of Siliguri, they used to study in Delhi and Bombay and Bangalore, and they always vied for those kind of subjects being offered and the syllabus being good. So now that option they have here in our college, because as an autonomous college, our board of studies are done and we can decide on what syllabus we can provide. थैंक यू सो मच सर फॉर सर के साथ बात करने के बाद मैं निकल गई दूसरा ब्लॉक के लिए। ये है आज ब्लॉक, तो इसको बोलते हैं डॉन बॉस्को ब्लॉक। तो ये देख रहे पूरा इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लगा हुआ है। तो ये भी है मेन एंट्रेंस, और यहाँ से अंदर जाने में यहाँ पर बोर्ड्स इंफॉर्मेशन सब कुछ लगा रहता है। तो अंदर जाने से में ऐसे है, यहाँ पर एडमिशन चल रहा है। तो देख रहे हो पेरेंट्स भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये है हम लोग का प्रिंसिपल का ऑफिस। तो ऑफिस के उसमें अभी एग्ज़ाम चल रहा है। तो बैग देख रहे हो, ये पूरा स्टूडेंट का बैग रखा हुआ है। कॉलेज क्यों इतना खाली खाली लग रहा है, क्योंकि कॉलेज का भी टेस्ट हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसीलिए मैंने हर क्लास का व्यू भी नहीं ले पाई। तो अभी मैं चली गई यहाँ पर, ये नजरत ब्लॉक, जो साइंस ब्लॉक बोलते हैं। तो पूरा ग्रीनरी है हम लोग का कॉलेज में। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि क्लीन एंड ग्रीन कैंपस देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये रहा साइंस ब्लॉक। इस यहाँ पर कोर्सेज क्या क्या होता है कि मैथ्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और BCA, ये सारा कोर्सेज है। यहाँ पर पूरा लैब का फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। तो ये पूरा व्यू नजरत ब्लॉक का। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कॉलेज डिवाइड हुआ ईच ब्लॉक में, जहाँ की साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का बच्चे लोग अच्छे से पढ़ सके, स्पेशियस है, बहुत जगह हो सके। पूरा कॉलेज टूर भी आप लोग को दिखा रही हूँ, ईच ब्लॉक दिखा रही हूँ। अभी एग्ज़ाम्स चल रहा है, तो स्टूडेंट्स लोग बाहर नहीं है इतना सारे, सब कोई एग्ज़ाम कर रहे हैं। तो जैसे कि देख रहे हो कि पूरा कैंपस ही क्लीन कैंपस है। और यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट भी इतना बड़ा है यहाँ का, देखिए इतना अच्छा लग रहा है देखने में भी। और जैसे कि यहाँ पर ट्रगना ट्रॉफी और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी अपना अपना एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ का जो मेन हम लोग का को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनोवेशन, इंस्केप, वो एक मेगा इवेंट है। तो यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता है। तो ये देखिए, हम इसको नजरत, ये एक्चुअली साइंस ब्लॉक है। तो मैं जा रही हूँ उस तरफ है आपका आर्ट्स ब्लॉक। ये मैं जा रही हूँ आर्ट्स ब्लॉक। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो देख सकते हो। और क्लासेस है, क्लासेस पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम्स टाइम में नोट्स। तो आप लोग को कैसा लगा ये कैंपस टूर का वीडियो, तो मुझे बोलना। और एडमिशन का जितना भी इंक्वायरी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने वो डाल दिया है, अब के वो देखना। और हम लोग का कॉलेज वेबसाइट www.selection college.ec.in पे जाके आप लोग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो जो पीछे में दिख रहा है वो पूरा आर्ट्स ब्लॉक है। यहाँ पर कोर्सेस क्या क्या होता है कि कोर्सेस में आपका इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश मास्टर्स भी है, एजुकेशन ऑनर्स इन एजुकेशन में मास्टर्स भी होगा। फिर उसके बाद BA और मास्टर्स, फिर है हिस्ट्री का भी नया कोर्स भी आया है, जो मेजर हिस्ट्री एंड टूरिज्म। एंड फिर है आपका BCom, MCom, BBA टूरिज्म। और फिर है मैथ्स, फिजिक्स। और जितना भी आप लोग को इंक्वायरी करना है तो कमेंट करना, और जितना रिप्लाई हो सके मैं दे दूँगी। और अगर कोई इंफॉर्मेशन जानना है तो कॉलेज में आइए। वीडियो
वीडियो करते करते बच्चों लोग का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया था। तो ये था ये फर्स्ट शिफ्ट का, अभी सेकंड शिफ्ट भी होने वाला है। तो इन लोग ख़त्म करके थोड़ा कैंटीन में खाना खा के जा रहे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। कीप सपोर्टिंग।